Firstly, myself, Vishal Naik Nore, Associate Professor, Postgraduate Department of Chemistry, Swatantraveer Savarkar Mahavidyalaya, Bid. It gives me immense pleasure to extend to you a very warm welcome on the behalf of National Webinar on Rich Traditions of Indian Knowledge System in Context of Chemical Sciences, organized by Postgraduate Department of Chemistry, Swatantraveer Savarkar Mahavidyalaya, Bid, in Maharashtra, with collaboration with Vidyan Bharati Devgiri Prant in Maharashtra. So, firstly, I welcome to some some dignitaries of this national webinar. So, today's program chairpersons of this webinar, principal of our college, Professor Preeti Poyekar Madams, Swa Savarkar College, Swatantraveer Savarkar Mahavidyalaya, Bid. Then I also welcome to our college vice principal, Dr. Rajesh Dere, and another one vice principal, Dr. Lakshmikant Bhaigaonkar sir. Then also I welcome to this seminar, that's this national webinar, convener of this webinar, uh, Honorable Dr. Hamsraj Joshi, Head Department of PG Department of Swatantraveer Savarkar Mahavidyalaya, Bid. Then also I welcome to uh, today's speaker, our research persons, Dr. Rajiv Singh ji, and also welcome to another one most important persons is Professor Sripad Kulkarni, Devgiri Prant, Vidyan Bharati. Now, then this national webinar is organized on the occasion of great Indian scientists, uh, his birth anniversary of Dr. Prafulla Chandra Ray. He is known as the father of Indian chemistry. He established first Bengal chemical and pharmaceutical company in 1901. So this is the most memorable day. We organize this national webinar today, 5th August 2023. So now I request to Dr. Sripad Kulkarni, uh, Vidyan Bharati Devgiri Prant, to introduce to today's speaker and introductory remark of this webinar. So, Thank Dr. you. Sripad Kulkarni, sir. Thank you, Vishal Naik Naure, sir. So today I welcome on this national webinar, which is rich tradition of Indian knowledge system in the context of chemical sciences. And also we are celebrating the birth anniversary of Acharya Prafulla Chandra Ray. So I welcome to all the dignitaries, speakers of the today's guests. Uh, so just I will brief regards Vigyan Bharati. I am a Vigyan Bharati Karyakarta in the Devgiri Prant. So Vigyan Bharati is a Swadeshi science movement. Just I will share my presentation very quick. Within a 2 minute, I will finish it.
So Vigyan Bharati is a Swadeshi science movement. India Vigyan Bharati established in the 1991. विज्ञान भारती एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो 1991 में उसकी स्थापना श्री के आई बासु जी ने की थी, जो अपना विज्ञान भारती जो है, जो अपना पुरातन विज्ञान से आधुनिक विज्ञान ये सारे विषयों पे एक राष्ट्रीय लेवल पे काम करता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इस पे काम करता है। विज्ञान भारती के बहुत सारे आयाम हैं, इसमें कुछ कुछ आयामों की बहुत ब्रीफ में मैं जानकारी देना चाहता हूँ, जिसमें IIWM इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट है, जो कि स्पेशली सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करता है। उसके बाद में एक शक्ति नाम का एक आयाम है, उसमें शक्ति इट इज एसोसिएशन विथ सोशल एम्पावरमेंट इन द वुमेन। देन विज्ञान भारती जो अपना प्राचीन आयुर्वेद जो हम कहते हैं, जो इसमें रीच हमारा है, तो विज्ञान भारती आयुर्वेदा में भी काम करता है। वर्ल्ड आयुर्वेदिक फाउंडेशन जो जितने भी आयुर्वेद का प्लेटफॉर्म, ऑल द स्टेक होल्डर्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका हमेशा हर साल एक बड़ा सा फंक्शन होता है। उसके बाद में नस्या एक आयाम है, जो आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं उनके इसमें कुछ मोटिवेशन करके जो अपना रीच एडिशन है उसमें इन्हांसमेंट का काम करता है। Then Tech for Seva, this is specially for technology based event for the event. Then Mandala Vijnana Bharati, Vibhavani India. Then Shiksha Selfie is specially dedicated for the teachers, how to teach teaching learning pedagogy. Then we are also celebrating one India International Science Festival, which is International Festival of Science. That is also one of the initiative of the Vigyan Bharati. Then for the students, one more activity is there, Vidyarthi Vigyan Manthan. This also initiative is taken by the Vigyan Bharati. So Vigyan Bharati is doing lots of work in the field of science, reach that is in our new education policy, Indian knowledge system and all this regards. So आज की जो मुख्य स्पीकर है डॉक्टर राजीव सिंह जी, मैं उनके बारे में ब्रीफ करना चाहता हूँ। राजीव सिंह जी प्रोफेसर है और हमारे जो विज्ञान भारती का दिल्ली प्रांत, जिसको हम इंद्रप्रस्थ विज्ञान भारती कहते हैं, और इंद्रप्रस्थ विज्ञान भारती के सेक्रेटरी है। और राजीव सिंह जी प्रोफेसर है आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में। राजीव सिंह जी ने पोस्ट की है, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप ब्राजील में की है। उसके बाद पीएचडी भी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मास्टरेट भी वहीं से की है, और बीएससी भी हिंदू कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है। तो राजीव सिंह जी का बहुत ही वास्ट योगदान है केमिस्ट्री के विषय में। और राजीव सिंह जी का बहुत सारे ब्लॉग्स, और हमारे जो नेशनल लेवल का एक मैगजीन है साइंस इंडिया मैगजीन, उसमें भी एक वन ऑफ द ऑथर है राजीव सिंह जी। तो आज के इस उपलक्ष्य में राजीव सिंह जी का यहाँ पे वेलकम करता हूँ, और आगे के लिए मैं विशाल जी को प्रोसीड करने के लिए कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you, Sripad ji. Now, I request to this webinar, chairperson of this webinar, Honorable Principal Professor Preeti Poyekar Madam, to give presidential address of this webinar. So, please, Madam, give the presidential address. नमस्कार सगळ्यांना. मराठी चालणार आहे की हिंदी प्रेफर करू? नाईक नवरे सर, हिंदी प्रिपेयर करा मैडम। ओके ठीक है, क्योंकि राजीव सिंह जी को जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है ओके। सभी को नमस्कार।
ये जो प्रफुल्ल चंद्र रे लेक्चर सीरीज आज ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने इसका जो ऑर्गेनाइजेशन किया है और विज्ञान भारती के श्रीपाद कुलकर्णी जी इनके कोलैबोरेशन में ये जो हम इवेंट ले रहे हैं, इसमें जो प्रमुख वक्ता की हैसियत से राजीव जी जुड़ चुके हैं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के डॉक्टर सारंग जोशी जी, डॉक्टर नाइक नवरे जी और सभी भाई और बहनें। हम ये जानते हैं कि हमारे राष्ट्र को ज्ञान की एक बहुत प्राचीन परंपरा रह चुकी है। बिल्कुल 12वीं-13वीं सदी में ज्ञान की खोज में कुछ लोग हमारे यहाँ आए और हमारे यहीं पर वो स्थित भी हो गए, ये हम जानते हैं। अगर इन सब का हम थोड़ा विचार करते हैं तो प्राचीन काल में ज्ञान, बुद्धिमत्ता और सत्य, इसकी खोज करना यह हमारे राष्ट्र का विचार रह चुका है, हमारे राष्ट्र का यह तत्व रह चुका है जो सर्वोच्च मानवीय ध्येय जो है उसको निश्चित करने की ओर हमारे राष्ट्र को लेकर के जाता रहा है। प्राचीन भारत और हमारे आंतरिक या अंतर्गत जिसे हम कह सकते हैं, ज्ञान व्यवस्था जो है उसको उजागर करना, यह भारतीय ज्ञान व्यवस्था जो है उसका एक उद्देश्य निश्चित हो चुका है। हमारा जो राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण है, वो धोरण भी भारतीय ज्ञान व्यवस्था को हमारे उच्च शिक्षण में, हमारे हायर एजुकेशन में लाने के बारे में बहुत ही अभी जो है वो प्रयास कर रहा है। हम अगर हमारे राष्ट्र की जो परंपरा है उस परंपरा का विचार करते हैं तो हमारे राष्ट्र को चाणक्य है, सुश्रुत है, आर्यभट्ट है, वराहमिहिर जी है, भास्कराचार्य जी है, पाणिनि जी है, मैत्रेयी है, गार्गेय है, इन जैसे जो है वो ज्ञान के उद्गाता हमें हमारे राष्ट्र में रह चुके हैं और इन सभी की ज्ञान की वजह से हम पूरे देश को, हम पूरे विश्व को एक अलग ऐसी पहचान जो है हमारी दे सकते हैं। उसमें कई विषय आते हैं, जैसे गणित है, बिल्कुल धर्मशास्त्र है, नीति शास्त्र है, यहाँ से लेकर के आरोग्य शास्त्र है, अभियांत्रिकी है, यहाँ से लेकर के बिल्कुल योगा है, या फिर अलग अलग कलाएं जिसे हम कहते हैं, गायन है उसमें, वादन है उसमें, नृत्य है उसमें, या फिर क्रीड़ा के भी जो अलग अलग प्रकार है जिसे चेस हम कह सकते हैं। ऐसे अलग अलग जो है ये हम विश्व को दे चुके हैं और उसी की माध्यम से हम विश्व गुरु बनने की ओर अब बढ़ रहे हैं। हमें अगर विश्व गुरु बनना है तो हमारे उच्च शिक्षा में हमको भारतीय ज्ञान व्यवस्था जो है उसको लाना पड़ेगा और उसी का एक जो है ये आयाम है कि हम आज का ये कार्यक्रम जो है उसे हमने ऑर्गेनाइज किया है। केमिकल साइंस जो है, केमिकल साइंस का इंडियन नॉलेज सिस्टम में क्या स्थान है, उसको हम आज जो है एक बार उजागर करने जा रहे हैं और राजीव जी, मुझे विश्वास है कि राजीव जी ये सब जो है उसको उजागर करके हमारी विद्यार्थियों को उस व्यवस्था की ओर जाने की एक जो है वो दिशा दिखाएंगे। और इसी अपेक्षा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और नाइक नवरे जी, आपको मैं आगे के सूत्र सौंपती हूँ। नाइक तिवारी जी आप म्यूट है, विशाल जी म्यूट है। नहीं, अभी भी म्यूट है आप। हाँ ठीक। Thank you, madam, for give the presidential address. So now I request
to speaker of this webinar, Professor Raju Singh ji, give a few words or deliver your lecture for this webinars. जी, नमस्कार एंड धन्यवाद विशाल जी। नमस्कार सर। आप पूरा अच्छा संचालन आपने मेरा इंट्रोडक्शन में किया और मेरा धन्यवाद प्रिंसिपल मैडम को भी, प्रोफेसर पोहेकर जी को। थैंक यू मैडम फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स ऑल्सो गोज टू अजय जेरे जी एंड श्रीपद कुलकर्णी जी, आपने मुझे इनवाइट किया और टॉपिक आप लोगों ने जो चूज़ किया है वो बहुत रेलिवेंट और अच्छा टॉपिक है। मैं आपके स्कूल महाविद्यालय की वेबसाइट पे भी जाके देखा तो मास्टर्स में मुझे सिर्फ केमिस्ट्री मिली, तो मैंने कहा कि यानी ये केमिस्ट्री पे एम्फेसिस अच्छा है और केमिस्ट्री बैकग्राउंड से होने के नाते और टॉपिक भी एकदम रेलिवेंट टॉपिक रहा हमारे से रिलेटेड। और टॉपिक इतना रेलिवेंट है कि जितने भी आज की फैकल्टीज़ और हमारे बीच में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, आई होप उन्हें मज़ा आए सुनने में, क्योंकि ये टॉपिक जो मैं एक नॉर्मल लेक्चर टाइप नहीं देने वाला हूँ, आपको कहानियाँ ही सुनाने वाला हूँ। क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा जितनी भी हमारी कंसेप्ट्स थे वो किस्से और कहानियों के फॉर्मेट में ही याद करे जाते थे। तो वो किस्से और कहानी आपको पता होने चाहिए। हम लोग आज की तारीख में उन्हें समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो भाषा हमें आती नहीं है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि आपको सुनने में मज़ा आए और आप उसे याद ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाए, और जब आप बाहर जाओ तो आप फिर उस तरह की 4 चीज़ों को और खुद भी एक्सप्लोर करो और पब्लिक में भी जितने आपके जूनियर्स हैं या बड़े हैं उनके साथ आप शेयर करके और इन्फॉर्मेशन को गेन करने की कोशिश करो। मैं हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन लेके चलूँगा, यही आजकल की हमारी इंटरनेशनल, कहते हैं ना, नेशनल लैंग्वेज ही हिंदी इंग्लिश की बन चुकी है। सो प्योर हिंदी भी नहीं और प्योर इंग्लिश भी नहीं, और मराठी मुझे आती नहीं है। और विज्ञान भारती में होने की वजह से मैं मराठी सीखने की कोशिश बहुत कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मराठी हैं, चाहे वो जयंत राव जी थे या अरविंद रानाडे हैं, मानसी मलगांवकर, श्रीपद जी, बहुत सारे लोग हैं मराठी जिनसे मेरा दिन में कम से कम 2-3 बार तो बात हो ही जाती है। तो मैं मराठी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सच्चाई है जी। तो देखिए मैं अपना प्रेजेंटेशन टाइप को शुरू करता हूँ। ये प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में आया या वैसी स्लाइड ही दिख रही है? बस स्लाइड दिख रही है सर अभी। एज अ पीपीटी नहीं आ रहा है। एज ए पीपीटी आ रही सर। ठीक। तो जो हमारा टॉपिक है, जो आपने टाइटल रखा, मैंने टॉपिक को भी और अपना जो उद्बोधन है उसको ऐसे ही ढालने की कोशिश करी है। रिच ट्रेडिशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ केमिकल साइंसेस। मैं कितनी देर बोल सकता हूँ पहले ये भी बता दीजिए मेरे को, उसी हिसाब से मैं आगे शुरू करूँगा। Excuse sir, it is not in the PPT format. Okay, it is in the slide format, right? Yeah. ये गूगल के अंदर ये वाला एक बहुत मेजर इशू, आई बिलीव। स्क्रीन करने के बाद आता है वैसा वो एंटायर स्क्रीन, जब आप शेयर एज एंटायर स्क्रीन करेंगे तब वो दिखता है। अच्छा, मैं एंटायर स्क्रीन कर देता हूँ। उसके नीचे जो वॉच का जो फिगर है ना सर, उसको प्रेस कीजिए प्लीज। हाँ, वो मैंने किया। ये है थोड़ा इशू, मैं अभी देखिए। हाँ, यस सर, इट इज ओके। फाइन। कितनी देर बोल सकता हूँ मैं? सर 40 मिनट। 40 मिनट। हाँ। ठीक।
चलिए लेट्स स्टार्ट देन। तो जो आपका टॉपिक है रिच ट्रेडिशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ केमिकल साइंसेस, यानी केमिस्ट्री के हिसाब से जो आज तक हमारे इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक है, नॉलेज जो आपके पास रखी हुई है, और जैसा हम लोग हमेशा से ही चर्चा करते आए हैं कि भाई जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। अब इतने सालों से जो सभ्यता चलती आ रही है वो पिछले 100 साल जो हमारे सामने इमेज है, पिछले 100 साल में तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ पिछले 100 साल में ही हमें ज्ञान मिला हो, उससे पहले भी हमारे पूर्वज रहे थे और उन्होंने कितना काम किया है। और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट अगर मैं नॉर्मली भी बैठ के सोचूं तो केमिस्ट्री यकायक 100 साल पहले तो एकदम पैदा नहीं हो सकती है, 150 साल पहले, जैसा कि कहते हैं कि मोस्टली इन्वेंशंस डिस्कवरीज यूरोप और ब्रिटिश में हुई थी। ऐसे तो हम छोड़ दौड़ करके थोड़ा सा इसको म्यूट अगर कोई जी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो जब हम इस टॉक के बारे में बोलना शुरू करें और सोचना भी शुरू करें तो पहले अपने माइंड में एक तो ये चीज को क्लियर कर ले कि केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी ज्ञान 100-200 साल पहले नहीं आया है, वो हजारों सालों से बनता और आज तक आपके सामने जो दिख रहा है वो बहुत सालों में बन के आया है, हजारों साल लगे उसे बनने में। अगर हम तुलसी के पौधे की भी बात करते हैं कि वो हेल्थ के लिए अच्छा है, तो ये ऐसे 50-60 साल पहले थोड़ी ना पता लगा। या हजारों सालों में किताबों के अंदर किसी ने पहली बार, इसका माइक बहुत, कैन यू प्लीज म्यूट इट। वो इतने सालों में जाके जो तुलसी का पत्ता आज आपको पता लगा कि चाय में डालेंगे या खाएंगे तो अच्छा हेल्थ के लिए होता है। आप अपने खाने की बात कर लो, दुनिया में किसी के आगे देखा है कि वो अदरक भी डालता है, लहसुन भी डालता है? कुछ नहीं। ये इंडिया के पास ही एक सिस्टम है। दैट मीन्स जिसने पहली बार अदरक डाला था उसने उसकी केमिकल प्रॉपर्टी या उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी थी उसको रिकॉग्नाइज किया और फिर आपने अपने फूड के अंदर उसे ऐड करना शुरू किया। तो एडिंग ऑफ जिंजर आल्सो टू योर फूड is what is the why do we add it? Because of the medicinal property. और मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या है? हम केमिस्ट्री की रिसर्च भी करते हैं तो हर चीज के बायोलॉजिकल स्टडी भी करते हैं ना अपने कॉम्प्लेक्सेस की। मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हूं तो हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी करते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज इट? तो ये जो सिस्टम है इस पे विश्वास करके और ये सोच के कि हजारों सालों से आज हमारे सामने आया है, ये 200 साल 150 साल पहले नहीं उजागर हुआ। फिर दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि सिर्फ रीनेम होती हैं चीजें। आज जिस आप वर्ड को एटम और मॉलिक्यूल बोल रहे हो वो पहले अणु के नाम से जाना जाता था, अणु, परमाणु, और मैं भी आपको और भी नाम दिखाऊंगा। होता 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 आज जो आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो दैट इज द इंग्लिश और द ब्रिटिश सिस्टम दैट वी आर फॉलोइंग, वहां पर आके अब हमने उसे एटम और मॉलिक्यूल वर्ड देना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप पुरानी किताबें देखोगे तो चाहे वो इंग्लैंड की थी, चाहे वो रोम की थी या इजिप्शियन की थी या इंडस इंडिया की थी, किसी में भी आपको एटम और मॉलिक्यूल वर्ड नहीं मिलता था। वो आज एटम मॉलिक्यूल धीरे धीरे डेवलप हुआ है वर्ड। तो जो साइंसेस है वो सिर्फ रीनेम हुई है। रसायन शास्त्र से वो केमिस्ट्री बन गया, केमिस्ट्री से केमिकल साइंसेस, और अभी आगे और डेवलपमेंट्स रहेंगे जैसे जैसे केमिस्ट्री और केमिकल साइंसेस के अलग अलग आयाम खुलते रहेंगे। तो देखिए प्रॉब्लम आती कहाँ से है। हम लोगों का आज जो इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए भारत सरकार इतना एम्फेसिस दे रही है इंडियन नॉलेज सिस्टम में, वो इंडियन नॉलेज सिस्टम की एक वजह है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रियलाइज करी कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई। और वो शुरू इसी जगह से हुई कि जब मैं आपके अंदर का कॉन्फिडेंस ही तोड़ दूंगा कि आपको आता ही नहीं है, तो 150 साल 200 साल में जो आपको कॉन्फिडेंस टूटा है आज उसी की वजह से है कि हमें ऐसे टॉक्स अपनी आने वाली जनरेशन्स को देनी पड़ रही है और समझाना पड़ रहा है कि नहीं, हम ऑलरेडी काम कर रहे थे, सिर्फ बीच में एक ब्रेक आया। 7,000 10,000 साल की सभ्यता के अंदर 100-200 साल का एक ब्रेक आया है एंड आई एम श्योर कि वो ब्रेक से हम आगे ओवरकम भी करेंगे। तो ऐसे मैंने 2-3 स्टेटमेंट्स आप लोगों के सामने लाया हूँ। चार्ल्स आर टॉयने थे जो प्रिंसिपल थे प्रेसिडेंसी कॉलेज के, कलकत्ता के अंदर बड़ा मशहूर है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। उनका ये क्या कहना था, इंडियंस आर इनकैपेबल ऑफ रैशनल थिंकिंग एंड हेंस कैन नॉट टीच फिजिक्स।
आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी है या हम पढ़ा नहीं सकते? हमारे फिजिसिस्ट कहीं के कहीं पहुंच गए हैं, मेघनाथ साहा जैसे, जो इन्हीं के टाइम के रहे हैं। इसी तरह एचबी मेडलिकॉट, उनका भी यही कहना था कि इंडियंस आर इनकैपेबल इन नेचुरल साइंसेस। एल्फ्रेड क्रॉफ्ट, जो अब आप जिनको कहते हैं डायरेक्टर इन एजुकेशन थे उस वक्त कलकत्ता के आसपास, और जितना भी बंगाल था उसके इंचार्ज ही हुआ करते थे। और वो हमारा जो मेन, जैसे अब दिल्ली माना जाता है कैपिटल, उस टाइम पे कलकत्ता ही था। दैट इंडियंस डू नॉट हैव टेम्परामेंट फॉर एग्जैक्ट साइंसेस, मतलब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो पढ़ ही नहीं सकते थे। और जब ऐसे विचार के लोग आपके कुर्सियों पर बैठे होंगे तो आप कैसे उम्मीद करोगे कि आप लोग पढ़ सकते हो, या हमारे को जो पढ़ाया जा रहा होगा वो ठीक पढ़ाया जा रहा होगा। और ये स्टेटमेंट्स मैंने अपने आप से नहीं लाए, ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं, बुक्स में रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं। एंड बुक्स वो भी वही जो ब्रिटिश ने ही लिखी थी, और उन्हीं ने सारा नोट डाउन किया, बिकॉज उन्होंने नोटिंग्स, हर चीज का नोटिंग पहले क्वीन के पास जाया करता था, इंग्लैंड भेजा जाता था जहां पर पार्लियामेंट में डिस्कस होता था। तो ऐसे विचार हमारे बॉसेस जो हमें उस वक्त रूल कर रहे थे उनके थे। तो आज जो आप लैकुना देख रहे हो और ये इंडियन नॉलेज सिस्टम को हमें रिवाइव करने की जरूरत पड़ रही है, वो इसी वजह से है कि अगर मैं किसी से कहता हूँ कि ग्रेविटी वर्ड गुरुत्वा वर्ड से निकला है, तो गुरुत्वा का तो वो प्रूफ मांगना शुरू कर देता है, ग्रेविटी का प्रूफ नहीं मांगता है। ग्रेविटी किस वो बुक से आया वो उसको नाम नहीं पता होगा कि ग्रेविटी वर्ड कहाँ से आया, न्यूटन ने कौन सी बुक में लिखा था ये बात, वो बुक का पता ही नहीं, लेकिन कह दिया हाँ भाई ग्रेविटी न्यूटन ने दी थी, तो ग्रेविटी न्यूटन ने दी थी। और उससे पहले आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिया किताब में ऑलरेडी लिख चुका था, लेकिन वो किताब हमने पढ़ी नहीं। तो यही सारे आयामों को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है, समझना है चीज़ों को। तो मैं आपको, केमिस्ट्री के हम लोग हैं, तो पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल्स की बात करते हो, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। हम सभी ने विष्णु पुराण भी नाम सुना है, कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी। इसी तरह हमारे यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ बुद्ध धर्म भी फैला, जैन धर्म भी फैला। और पहले जितनी भी आपकी, जिनको हम रिसर्च लैब्स की बात करते हैं और हम थॉट प्रोसेस की बात करते हैं, वो सारी आपकी फिलॉसफी से जुड़ी हुई थी। फिलॉसफी के साथ आप कन्वे आसानी से कर लेते थे, इसीलिए लिखने का तरीका था नहीं, तो हम अपने विचारों से उस किसी भी कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया करते थे। इसी तरह हम जब बुद्ध धर्म को अगर पढ़ के देखते हैं, तो बुद्ध धर्म में भी एटॉमिक थ्योरी का एक्सप्लेनेशन है। उन्होंने भी अणु और परमाणु और अलग अलग जो एलिमेंट्स जिनकी अब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं, उनके बारे में व्याख्यान किया हुआ है। और अलग ऐसे नहीं, उन्होंने बाकायदा प्रॉपर्टीज टाइप एक्सप्लेन करी। मैं आपके सामने मैंने कुछ स्क्रीन में एग्जांपल्स कोट किए हैं। वायु को वो एटम्स नहीं लिखते थे, ये जब हमने रीट्रांसलेट किया उन बुक्स में से चीजों को निकाला, तो आपके सामने हमने एटम वर्ड को लिखा है। ठीक है, आप जब वायु की बात करते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं और हम एटम्स को अलग अलग तरीके से, आप भी देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर हम बुद्ध धर्म की बात करें, और मैं आपको बताऊं ये बुद्ध धर्म से लेकर जैन धर्म की जितनी भी एटॉमिक थ्योरीज हैं, या हमारी हिंदू धर्म की जो किताब है वहां से निकली है, उस पर भी अभी हम आएंगे, लेकिन अभी बुद्ध धर्म से जाते हैं। ठीक है, अगर किसी एटम को वायु नाम दिया है, मतलब किसी मेटल या किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं उसको अगर हमने वायु, मतलब उसके अंदर या तो टच सेंसिटिविटी है, इंपैक्ट है और प्रेशर की वो प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, और जब वो मॉलिक्यूल एटम बनता है तो वो एग्रीगेशन में वायु, आज जिस वायु को हम अपने से रिलेट करते हैं वो सिर्फ हवा से रिलेट करते हैं, लेकिन वायु वर्ड को फिलोसॉफिकली रिलेट किया गया किसी भी एक एटम को जिसके अंदर टच सेंसिटिविटी है, इंपैक्ट प्रॉपर्टी है और प्रेशर प्रॉपर्टी है, उस एटम को हमने वायु नाम दिया था। इसी तरह जब उसमें हीट की प्रॉपर्टी आ जाती है किसी एटम के अंदर, किसी मेटल के एटम के अंदर जब हीट की प्रॉपर्टी आती है उसको हमने तेजस नाम दिया। ये बुद्ध धर्म की किताबों में लिखा हुआ है, जो उन्होंने एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। इसी तरह
अलग अलग जितने प्रॉपर्टीज बढ़ती चली जाएंगी, हमने अलग अलग नाम दिए उसमें। जैसे विस्कोसिटी बढ़ रही है, फिर अर्थ एटम्स यानी जमीन से जुड़ा हुआ, धरती से जुड़े हुए, इसमें स्मेल आ गई, ड्राइनेस आ गई, रफनेस आ गई। जैसे जैसे अलग अलग मेटल्स के एटम्स हैं, उनकी जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, उसे एक्सप्लेन करने के लिए जो हमने नाम यूज करे वो नाम थे जो कुदरत से रिलेटेड थे, जो नेचर से रिलेटेड थे। और यही सबसे बेस्ट पार्ट, हमारी जो पहली सभ्यताएं रही है, जो हमारे पहले पूर्वज रहे हैं, उन्होंने हर चीज को नेचर से जोड़ने की कोशिश करी है। ठीक है, तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए देखिए, जैसे अब लास्ट में लिखा भी है, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट एटॉमिक थ्योरी, एटम्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। दे नेवर अकर अलोन, but rather occur only as members of an aggregate of at least 7 or 8 atoms. Aggregate of an atom is a molecule. जितना उन्होंने रिसर्च किया, जितना वो लोग जान पाए, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है, वो वहीं तक पहुंच पाए। लेकिन जो फाउंडेशन है वो ऑलरेडी पहले, आज जिस हम एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं और जिस हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके फाउंडेशन आज नहीं, हजारों साल पहले रख दी गई थी। और वो जो अभी हम गोल वाला न्यूक्लियस बनाते हैं और उसके अराउंड अबाउट ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ऑर्बिट्स बनाते हैं, ये कोई नई थ्योरी नहीं है। रदरफोर्ड और इन सब ने सिर्फ एक्सपेरिमेंटली मॉडर्न टर्म्स में उसे प्रूव किया। इसका एक्सप्लेनेशन आप अपनी पुरानी किताबों में आपको मिलेगा, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा चीजों को। अब देखिए, अगर हम उसी लैब की बात करते हैं, वो लैब का हाल ये है जहां से बुद्धिज्म की एटॉमिक थ्योरी का ओरिजिन हुआ था। ये जम्मू एंड कश्मीर में बारामूला में एक जैन विहार करके, ये क्या बोलते हैं अपना जैन क्या बोलते हैं, बुद्धिज्म का एक सेंटर हुआ करता था। अब उसे वही, जब हमारे पास रेड्स पड़ी और बाहर के लोग आए, उन्होंने तोड़ फोड़ का बराबर कर दिया, तो आज वो लैब तो गायब हो गई है। ठीक है, लेकिन ये ढेर है जो अब धीरे धीरे एक्सकेवेट किया गया, तो निकाला गया कि यहाँ पर ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था। और ये साइड में आप जो देख रहे हैं रेफरेंस है, कहाँ से मैंने ये आपको जो एटॉमिक थ्योरी ऑफ बुद्धिज्म दिया है, उसका रेफरेंस है, जो एक किताब है उदयोदय करा का, जो उन्होंने 15वीं सदी में बुद्ध सूत्र के नाम से किताब को रीट्रांसलेट किया था। वहां पर आपको एटॉमिक थ्योरी ऑफ बुद्धिज्म का एग्जाम्पल मिलता है, एक्सप्लेनेशन मिलता है। इसी तरह बुद्धिज्म के साथ साथ हमारा एक और धर्म आया था, जैन धर्म। अब जैन में भी देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, फिलॉसफी के तरीके से हम लोगों ने हर चीज को एक्सप्लेन किया। मेरिट, डीमेरिट, स्पेस, टाइम, और फिफ्थ है मटीरियल यानी एलिमेंट्स, मेटल्स, जितना भी आपका अलग अलग टाइप का मटीरियल है। और उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल करे? मैटर के लिए पुद्गला, एटम के लिए उन्होंने अणु इस्तेमाल किया, और मॉलिक्यूल के लिए स्कंध। अब यहीं पे जो हमारा इंफॉर्मेशन लॉस आता है, आज जिस वजह से लेक्चर हो रहा है, वो इसी वजह से है कि स्कंधा का अगर मैं बोलूंगा कि मॉलिक्यूल है, लोग पहचानेंगे नहीं। मॉलिक्यूल से हमारा स्टूडेंट और हम भी मॉलिक्यूल को वही एंगल से पहचानेंगे जहां पर आपका मॉडर्न टर्म्स में या ब्रिटिश सिस्टम में जो हमें याद कराया गया। और देखिए कितना अच्छा इंटरेस्टिंग है, जैन्स बिगिन, जो उनकी बुक है उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, जैन्स बिगिन विद एन एब्सोल्युटली होमोजीनियस मास ऑफ पुद्गला which by differentiation, देखिए, which by differentiation breaks up into several kinds of atom qualitatively determined। मतलब atoms changing into molecules भी एक्सप्लेन किया हुआ है, और आगे फर्दर प्रोसेसेस जो है मॉलिक्यूल्स जब छोटे एटम्स में अगर हम रिवर्स करें तो वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है बाय द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अलग अलग एंगल से। और जो मॉलिक्यूल्स है जिनको हम डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक की बात करते हैं, वो भी एक्सप्लेन्ड है। स्कंधा में वेरी फ्रॉम बाइनरी, दैट इज 2 to infinite। A binary skandha is, a binary molecule is an aggregate of 2 atoms, हम भी यही बात करते हैं। A tertiary skandha is formed by an addition of an atom to a binary, obviously एक दो के साथ एक और बनेंगे तो हम टर्शरी, ट्राई पे आते हैं। ठीक है, इसी तरह द असेंडिंग ग्रेड्स कैन बी नंबर्ड, मतलब एटम मॉलिक्यूल्स, मतलब वो एक पूरी चेन
से लेके 2 टाइप के मॉलिक्यूल, अगर 2 टाइप के एटम्स जुड़े तो उसे क्या बोलेंगे, 3 जुड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, 4 जुड़ेंगे तो क्या बोलेंगे। मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म में ये चीज दिखाई है, ठीक है। तो अगर हम इस एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं तो ये एक नई चीज नहीं है। एटॉमिक थ्योरी सिर्फ रीनेम हुई है, और जब हम रदरफोर्ड और बोर्स और थ्योरी और इन सब की बात करते हैं तो उन्होंने एक नए मॉडर्न कंसेप्ट के तरीके से सिर्फ उसे एक्सप्लेन किया है। Existence of atom, existence of molecule, existence of this what you call structure of an atom or the shape of an atom or molecule was already known. अब हम इस पे आते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, 1 मिनट रुकिए, मैं इससे पहले आप लोगों को एक चीज और दिखाऊंगा यहाँ पर आने से पहले। ये सब आता कहां से है? हम सभी ने विष्णु पुराण का नाम तो सुना है, विष्णु पुराण कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी, लेकिन विष्णु पुराण के थॉट प्रोसेस से निकली हुई किताबें, विष्णु पुराण में एक्सप्लेन की हुई किताबें, जब साइंस के लोगों ने 15वीं सदी में, 16वीं सदी में, 17वीं सदी में उन्हें पढ़ के ट्रांसलेट करना शुरू किया। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये मैंने खींची हुई एक बुक के अंदर विष्णु पुराण से ट्रांसलेट करके, जो हमारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं, आकाश टाइप का जो मॉलिक्यूल है उसे आप कैसे शो करेंगे, ये उसकी शेप है। ये बुक के अंदर है, ये 150-200 साल पुरानी किताब है जिसमें से मैंने फोटो खींची है ये। क्योंकि जब पहला लॉट ऑफ इंडियंस जो थे, पहले लॉट ऑफ साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने जब इन बुक्स को ट्रांसलेट करना शुरू किया तो ये ट्रांसलेट करके ये रिजल्ट्स निकले थे। केमिस्ट्री के बड़े महान प्रोफेसर हैं जिनकी एक किताब की फोटो आप देख रहे हैं। ये किताब आज से 120-25 साल पहले लिखी गई थी, बड़ी फेमस किताब है, अभी आएंगे उस किताब पे भी, बहुत फेमस किताब है। और उसी का ट्रांसलेशन उन्होंने अलग अलग जितनी भी हमारी लिपियां थी, अलग अलग हमारे जितने भी कॉन्टेक्स्ट में बुक्स थे, उनसे ट्रांसलेट करके एक इंग्लिश, जिसे आप कहते हैं ना मॉडर्नाइज्ड वर्जन, जो संस्कृत में खोना शुरू हो गया था क्योंकि ब्रिटिश हमारे यहाँ आने शुरू हो गए थे और उन्होंने अपना इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। तो इससे पहले कि ये ज्ञान लूज हो जाता, उन्होंने ट्रांसलेट करके आपके सामने रखा, बट सॉरी टू से हमने उसे साइड में करके, जो ब्रिटिश ने अब हमें आजादी के बाद पढ़ाया, हमने वही पढ़ना शुरू कर दिया। तो आपके सामने आकाश एटम का स्ट्रक्चर है। इसी तरह द एटम ऑफ वायु और एटम ऑफ तेजस, तेजस में हीट आती है, वायु में सेंसिटिविटी है, इस टाइप के। अब ये आप स्ट्रक्चर देख के आप इसे लगा सकते हैं कि क्या ये एटॉमिक थ्योरी, या जो हम न्यूक्लियस और एटम्स की वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात करते हैं, क्या वो एकदम नया कंसेप्ट है? वो एकदम नया कंसेप्ट आप कैसे उसे कह सकते हैं जबकि फाउंडेशन पहले से डली हुई थी। ठीक है, स्ट्रक्चर्स उन्होंने बनाए होंगे, धीरे धीरे उसे एक्सपेरिमेंटली जो मॉडर्न टेक्निक्स है उससे प्रूव किया, बट फाउंडेशन तो पहले ले की जा चुकी थी। हमारी बुक्स में ये सारी फाउंडेशंस पहले से थी। और इसी के एग्जांपल्स अब मैं आपको देता हूं कैसे कैसे हम लोग यहां तक पहुंचे। चलिए, हम यहां पर थे। अब ये सामने आपको जो पिक्चर आ रही है, ये पिक्चर हमने बहुत जगहों पे देखी होगी इस टाइप की, मतलब हिंदी पिक्चरों में भी देखी होगी, अपने मूवीज में भी देखी होगी इस टाइप की पिक्चर की। रानी जो है हाथ में शीशा लेके बैठी हुई है और अपने आप को देख रही है, ठीक है। और इसी पिक्चर पे जब हम आते हैं वापसी में, ये 12वीं सदी में चिन्नकेशव मंदिर है होयसाला एम्पायर का, वहां पर ये दर्पण सुंदरी गेट के ऊपर, दरवाजे के ऊपर मंदिर के, ये जो स्टैचू बना हुआ है, हाथ में क्या है, एक गोल टाइप की चीज है। अगर मैं इमेजिनेशन या अगर मैं सोचना भी शुरू करूं तो भैया हाथ में लेके इसको लेके क्या कर रही है, वो यही कि मे भी चेहरा देखने की कोशिश कर रही है। अच्छा, इस टाइप की चीजें आती हैं। अब किसी ने गैस करने की सोच है कि भाई अगर हम इतनी पुराने 12वीं सदी के मंदिर की बात करें तो वहां पर शीशा कहां से आया, जबकि अब हम जब इसकी बात करते हैं मिरर की, तो जनरली 17वीं या 18वीं सदी में मिरर का ओरिजिन बताया जाता है, जो अब हमारे घरों में लगा हुआ है मिरर, उसके पीछे सिल्वर की फिल्म है और
आप मिरर को जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इट वाज इन्वेंटेड बाय सम पर्सन, मैं नाम नहीं पता, इन्वेंटेड बाय सच पर्सन, और 17वीं सदी या 18वीं सदी में उसका ओरिजिन दिखाया जाता है। लेकिन क्या उससे पहले लोगों ने कभी अपनी शक्लें नहीं देखी थी क्या? इज इट पॉसिबल? या फिर वो कहते हैं कि भाई पानी का तालाब होता था, उसमें जाकर हर आदमी, इतने सारे लोग वहां जाके शक्लें देखा करते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये फोटो अगर आपने किसी ने देखी हो, इसका मैं बताता हूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है, बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री। इस शीशे का नाम है आरनमुला कन्नडी। आरनमुला केरल में एक गांव है, आज भी है, आज भी केरल में गांव है, और वहां पर ये शीशा बनाया जाता है। इसको अभी भी अगर आप जजमेंट करेंगे, या इसको खिताब मिला हुआ है वर्ल्ड्स मोस्ट परफेक्ट मिरर, और इस पे जीआई टैगिंग भी भारत सरकार ने अब लगा दी है कि जो आरनमुला से शीशा बन के निकलेगा उसी को आप आरनमुला कन्नडी नाम देंगे। इस शीशे की खासियत क्या है? बड़ा सिंपल सा, एक छोटी सी खासियत मैं इसके अंदर आपको बताता हूं। जब आप शीशा अपने सामने पिक्चर में देखते हैं, यहां पर आते हैं, जब हम घर में जो हमारा शीशा लगा हुआ है, जब आप उस शीशे को देखते हैं तो उस उंगली अगर आप उस पर रखेंगे, उंगली में और नीचे जो इमेज बन रही है उसके बीच में गैप आता है। लेकिन जब आप इस शीशे के ऊपर उंगली रखेंगे तो उसमें कोई गैप नहीं आता है। तो ऐसी क्या खासियत है इस ग्लास के अंदर, और ये हमारे घरों में क्यों नहीं पहुंचता अभी भी? ये बनता है, और वहीं पे जो 8 फैमिलीज हैं जिन्होंने कभी इसका इन्वेंशन किया था आज से हजारों साल पहले, ये अभी भी उन्हीं के पास है। अब इसकी मैं आपको कहानी सुनाता हूं, इसमें क्या हुआ था। ये क्या बोलते हैं, अपना आरनमुला का जो मंदिर है, पार्थसारथी मंदिर, वहां पे कृष्ण की मूर्ति थी, और कृष्ण की मूर्ति का जो मुकुट था उसमें कुछ क्रैक आया। तो राजा ने कहा कि भाई ये आप इमीडिएटली इसको नया, इसके लिए मुकुट बनाओ। तो पहले हर मंदिर के साथ हजारों लोग रहा करते थे। मंदिर अपने आप में एक रिसर्च लैब टाइप हुआ करता था, जहां पर आपके सारे आर्टिजन्स होते थे, कलाकार होते थे, जहां पर ये चीजें डेवलप हुई। तो वहां पर जो कारीगर लोग थे उनको कहा गया कि भाई आपको 5 से 6 दिन के अंदर एक मुकुट बना के देना है, और वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए उन जो कारीगर थे उन्हें वो जो हमारे उस टाइम पे कुछ नाम से जाने जाते थे, उन्होंने उसे काम करना शुरू किया। अब जब उन्होंने फाइनली उसको शेप दिया तो वो इतना चमकदार चीज थी। अब उस टाइम पे ग्लास नहीं था, ठीक है। तो आप एक चीज, पहली चीज मैं एक चीज और क्लियर करूंगा, ग्लास और मिरर, मिरर वो है जिसके पीछे सिल्वर फिल्म है, और ग्लास हजारों साल पहले ऑलरेडी रोम के समय से ग्लास आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन मिरर हमारा 17वीं सदी में जो आप सिल्वर की बात करते हैं। लेकिन ये वाला जो मिरर है इसकी क्या खासियत थी, और ये जो आपने प्रॉपर्टी बात करी ये क्या थी? तो इसका इन्वेंशन आरनमुला का जो पार्थसारथी मंदिर है वहां पर इसका इन्वेंशन हुआ, और उस इन्वेंशन के बाद से इसके अंदर इतनी परफेक्टनेस आई कि इसके अंदर एक भी गैप नहीं है। और इसकी क्या खासियत है, हम सभी ने, जैसे आप इसके आउटसाइड का ये देख रहे हैं, ये पीतल का है जो इसका केस है, और अंदर आपको मिरर दिख रहा है। इसकी खासियत क्या आई है, देखिए यहां पर केमिस्ट्री वाले लोग हैं। अब इसके अंदर क्या है, ये जो मिरर है दिस इज नॉट ग्लास, इसको हम कहते हैं मेटल मिरर। मतलब कॉपर और टिन, जो मेटल का जो एलॉय उन्होंने ऐसा बनाया, उस एलॉय में जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर को उस लेवल पे और इतना अच्छा कॉम्बिनेशन किया एक्सपेरिमेंटली, अलग अलग मेटल्स के साथ, अलग अलग प्रपोर्शंस में और अलग अलग फेजेस में, और अलग अलग जिनको आप कहते हैं ना एक्टिविटी, चाहे वो प्रेशर था, हीटिंग था और पॉलिशिंग था, ठीक है, कि जो मेटल था वो रिफ्लेक्ट करने लगा। सो दिस इज नॉट अ मिरर, दिस इज नॉट अ ग्लास मिरर, दिस इज अ मेटल मिरर। मतलब एक मेटल को ऐसे कन्वर्ट किया कि वो मिरर बन गया, राइट। तो इसमें अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में प्रोफेसर है, उन्होंने काफी इस पे काम किया। और जितना भी मटेरियल साइंसेज की हम बात करते हैं, मटेरियल साइंसेज के अंदर आपके जितने भी नए नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे सेमेट, एमएक्स, आरडी, अलग अलग जितने भी आज की तारीख में लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके बाद उन्होंने
इसमें कितना मेटल रेशो है उसे एग्जैक्ट निकाल के आगे प्रेजेंट करने की कोशिश करी है, लेकिन उन्होंने भी पब्लिक के लिए डोमेन में नहीं किया, क्योंकि ये एक सीक्रेट है जो 8 फैमिलीज के पास ही है आज भी, राइट। तो इसमें अगर हम देखते हैं क्या मिलता है, 32.6% टिन, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपका कॉपर एक रेशो में है, और इसके साथ साथ कुछ और मेटल एटम्स है, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो वो लोग ऐड करते हैं, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब एनालिसिस में निकाली गई, हम लोगों ने सभी ने मेटल्स की फेजेस पढ़ी है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो इट इज वेरी शॉकिंग कि उन लोगों ने इसको इतना प्रोसेसिंग किया, अलग अलग कंसेप्ट्स और आइडियाज लगा के, वेदर इट वाज हीटिंग, पॉलिशिंग, प्रेशराइजिंग और अलग अलग टेक्निक्स लगा के, कि उन्होंने इस मेटल का, इस एलॉय को डेल्टा फेज में पहुंचा दिया। और डेल्टा फेज में पहुंचने के बाद जो रिफ्लेक्टिंग पावर थी वो एकदम से उभर के आई, राइट। तो आप सोचिए कि मेटल को शीशे में कन्वर्ट करना, मेटल मिरर्स, दीज आर कॉल्ड एज मेटल मिरर्स। और ये मेटल मिरर ऐसा नहीं है कि इंडिया में आया था, ये चाइना में भी मेटल मिरर का ओरिजिन हुआ। लेकिन हमारे पास खासियत क्या थी, जितने भी मेटल मिरर्स दुनिया में उस आज से हजारों साल पहले प्रचलन में थे, वो बहुत ही ब्रिटल हुआ करते थे, टूट जाते थे, क्योंकि उसमें लेड हुआ करता था। और इंडिया वाला इसीलिए फेमस हुआ कि हमने जो इन्वेंशन किया मिरर का, मेटल मिरर का, वो अनलेडेड था, उसमें लेड नहीं था, इसलिए वो हार्ड रहा। और अब रिसर्च के साथ तो और भी पता लगा है कि इट इज ब्रिटल जरूर है, वो भी अगर आप गिरेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन वो स्टील से भी ज्यादा हार्ड है। तो अब आप सोचिए कि जब उस टाइम पे, जब आज वाले मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिनकी हम बात करते हैं कि आज उनके बिना काम नहीं हो सकता, तब हमारे जो कारीगर थे, आप उन्हें कारीगर कहें या मैं तो उन्हें मेटलर्जिस्ट ही कहूंगा, वो जो मेटलर्जिस्ट थे, उन लोगों ने ऐसा आपके सामने एक वर्ल्ड रिनाउंड एग्जाम्पल जनरेट करके दिया जो हमारे आज तक लोगों को पता नहीं है। वर्ल्ड्स मोस्ट परफेक्ट मिरर इंडिया में एग्जिस्ट करता है। हाँ, ये जरूर है कि जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आरनमुला कन्नड़ी मिरर है, वो इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा हुआ है, वो फिर उठा के ले गए थे। तो ये तो आम चीज है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, देखिए अभी हम ग्रीन कंसेप्ट की बात करते हैं, आप ये जितना भी प्रोसेस देखेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड, हम लोग जो एक्टिविटीज या इस तरह के रिएक्शंस होते हैं, क्या करते थे, ग्रीन प्रोसेस, इट वाज अ कंप्लीटली ग्रीन प्रोसेस। सारे जितनी चीजें इन्होंने यूज करी हैं, वो पेड़ों की छाल, सब्जियों से उनका जो रस है वो निकाल के, इस तरह के केमिकल्स यूज करके वो इस फेज तक पहुंचे। यानी केमिस्ट्री कैन बी डन यूजिंग ग्रीन ऑप्शंस ऑल्सो। हम लोग अब सिंथेटिक यूज करते हैं, और ग्रीन केमिस्ट्री के नाम पे भी एक तरीके से बस उसको रिड्यूस ही किया है कि 5 ml अल्कोहल लेने के बजाय भाई 1 ml में काम चला लो, यही ग्रीन केमिस्ट्री कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था ग्रीन प्रोसेस ऑफ प्लेइंग ऑल विद द केमिस्ट्री थिंग्स। चलिए अब आगे चलते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रन अप करूंगा। एक मैंने आपको एग्जांपल दिया आरनमुला कन्नड़ी का, किसी को अगर मौका मिले तो जरूर इस शीशे को लेने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि हमारे पास क्या क्या लिटरेचर में था। एक छोटी सी किताब है रसर नवा करके, मेटेलिक प्रेपरेशंस की, ठीक है। इसको जब आप देखेंगे तो आपको किताब के अंदर शिव और पार्वती के आपस के मतलब डायलॉग्स है, उसमें 18 चैप्टर की वो किताब है, ठीक है। और उसके अंदर आपको जितने भी अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग प्रोसेस हैं और अलग अलग इस्तेमाल हैं, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है इस किताब के अंदर। ये मिलती है अमेजोन पे भी, मिलती है अमेजोन पे भी है, ठीक है। तो रसरनामा को जब हम यूज करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या आपको अलग अलग चीजें मिलती है, मतलब कितने टाइप के लेबोरेटरीज होनी चाहिए, इंटीरियर डिजाइनिंग ऑफ द लेबोरेटरी कैसा होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट कैसे होने चाहिए लैब में, एपरेटस कैसा होना चाहिए, फ्यूमिगेशन चैम्बर कहाँ होना चाहिए, फर्नेस कहाँ पे होनी चाहिए, इस टाइप के जितने भी अलग अलग प्रोसेस है जो आज हम केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं, वो सारे इन बुक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। इसी तरह अलग अलग ये है, इस पे भी हम टाइम नहीं खर्च करेंगे, ठीक है। देखिए ये मैं फिर से एक उसी टाइप की एक बुक का फोटो खींच के लाया हूँ जो मैंने इसमें ऐड किया है। अब ये बुक ट्रांसलेटेड हुई है उन सारी चीजों से, और ये बुक भी नई नहीं है, ये बुक बहुत पुरानी है जिसका मैं आपके सामने फोटो ले रहा हूँ, ठीक है। ये बुक ऑलमोस्ट 100-150 साल पुरानी किताब की फोटो है,
जब पहली बार हमारे लोगों ने इन्हें ट्रांसलेट करना शुरू किया, तो मेटल तब भी एग्जिस्ट करता था आपके बुक्स में, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, लेड, ठीक है। सॉल्ट तब भी एग्जिस्ट करता था, अलग अलग टाइप के सॉल्ट एग्जिस्ट करते थे, अलग अलग टाइप के अल्कलीज एग्जिस्ट करते थे। अब मुझे थैंक्स देना चाहिए इनको कि जिनकी वजह से ये किताब जो है मॉडर्न फॉर्मेट में इस्तेमाल हुई। अगर मैं बात करूं मकर ध्वज की, भाई आप लोग मकर ध्वज यूज करते हो, कोई पहचान नहीं पाएगा मकर ध्वज क्या चीज है ये, बट मकर ध्वज इज मरकरी। और पहले जितनी भी मेडिसिन थी, आज की तारीख में मरकरी इज कॉल्ड एज पॉइजनस, राइट। लेकिन अगर आप आयुर्वेद और इन सब चीजों में देखेंगे तो मकर ध्वज और मरकरी इज यूज फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टी। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी थी कि हम उसको मेडिसिनल प्रॉपर्टी में यूज करते थे, राइट। तो अब जितने भी हमारे बुक्स हैं, मैं आपको उनमें से कुछ के एग्जांपल्स अभी और दिखाऊंगा। जैसे ये बुक्स हैं, ठीक है, सुश्रुता संहिता हम सबको पता है, मेडिसिन है, केमिकल सब्सटेंसेस है, ठीक है। मेडिसिन वगैरह को आप अलग, अब आप सेपरेटली पढ़ने लगे हो, केमिस्ट्री को एक हटा के अलग से, लेकिन दीज आर ऑल केमिस्ट्री। हम अल्टीमेटली कहते हैं ना इसकी एप्लीकेशन कहाँ होगी, वो एप्लीकेशन यही होगी। बृहत संहिता, नागार्जुन के रसायन शास्त्र, सब में आपको बकायदा प्रोसीजर्स, मैं आपको कुछ अभी एग्जांपल दिखाने वाला हूं, प्रोसीजर्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कन्वर्जन ऑफ मेटल्स, यूसेज ऑफ डाइज, व्हाट कॉल सिंथेसिस ऑफ डाइज एंड पिगमेंट्स, वो सब आपको इन बुक्स में मिलेंगे। कुछ बुक्स मेरे पास भी है, मतलब उन्हें इतना अच्छा लगता है पढ़ के कि ये सब एग्जिस्ट करते थे। अब एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल मैंने इस बुक में से निकाला है, मिनरल एंड मेटल प्यूरिफिकेशन ऑफ सल्फर। सल्फर की प्यूरिफिकेशन हम अपनी लैब्स में भी करते हैं, लेकिन हमारी जो बुक्स में मेथड दे रखा है जो अब हम यूज नहीं करते हैं, और उल्टा सिर्फ हमने ट्राई भी नहीं किया है, एक्सपेरिमेंट की तो दूर बात है। तो देखिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज हुए हैं। सल्फर के साथ हमने प्यूरिफिकेशन के लिए गाय का घी, ठीक है, आपने दूध को इस्तेमाल किया, भृंगराज के जूस को इस्तेमाल किया, और अलग अलग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से आपको सामने शोकेस किया है, अलग अलग तरीके से आपके सामने आप जो प्रोसेसेस हैं उन्हें गेन कर सकते हैं, सल्फर का जो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, राइट। लेकिन इसको अभी पढ़ना बाकी है। अब एक प्रोसेस हमारी बुक्स में ये भी बड़ा सबसे फेमस मिलता है, ये कन्वर्जन ऑफ लेड इनटू गोल्ड, ऑल्दो दिस इज नॉट एग्जैक्टली गोल्ड, दिस इज फूल्स गोल्ड, ठीक है। तो लेकिन प्रोसेस तो था ना, आप गोल्ड जैसा, आप जिनका फॉल्स गोल्ड की बात करते हो, जब आप मार्केट में जाते हो तो गोल्ड जो हम जो ज्वेलरी है, फॉल्स ज्वेलरी जिसकी बात करते हैं, तो वो प्रोसेस, फॉल्स ज्वेलरी इज नथिंग न्यू, लेकिन आपका बस इंस्ट्रूमेंट बदल गया और आपने उसके साथ इतना सारा पॉल्यूटेड वाटर और पॉल्यूटेड केमिकल्स डंप करना शुरू कर दिया, जबकि उससे पहले भी गोल्ड बनता था, और प्रोसेस आपके सामने है, ठीक है। लेड की पत्तियां लेंगे, उसमें आप कारावीरा ऐड करेंगे। अब कारावीरा क्या चीज है, ठीक है, कारावीरा एक प्लांट है जिसको हम कहते हैं नीरियम ओडोरियम, ठीक है। इसी तरह अलग अलग चीजों को आप यूज करके, प्रोसेसेस को यूज करके, आप अल्टीमेटली यू विल गेट अप व्हाट यू कॉल अ मेटल, what you call an element which has the properties of a gold, a reflecting properties similar to gold. तो ये जो प्रोसेस है, this is nothing new. केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स जो है वो कोई नए नहीं है, आपने और हमने उसको यूज करने का प्रोसेस बदल दिया है। आपको उसे रियलाइज करने की जरूरत है कि हमें कैसे कैसे उस प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेसेस है। और आई होप, या मेरी कोशिश ये रहेगी, हम लगे हुए हैं कि ये जो प्रोसेसेस है इनको आज की तारीख में रेलिवेंस बनाने के लिए ग्रीन केमिस्ट्री को और ग्रीन बनाइए, तब जाके ये चीज होगी, क्योंकि यही चीजें हैं जो करोड़ों के नेचुरल एनवायरनमेंट में वापस चली जाएंगी। चलिए, और एक लास्ट एग्जांपल, आपको ऑलमोस्ट 40 मिनट होने वाले हैं, मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा जिसका अभी हम लोग काफी मजाक उड़ाते हैं। विमान शास्त्र के हवाई जहाज उड़ाया करते थे, या राम और रावण वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। इस तरह की बड़ी बातें चलती हैं। एक IIT के अंदर महेश्वर शैरोन और उनकी वाइफ है माधुरी शैरोन, उनको CSIR का एक प्रोजेक्ट मिला था। तो मुझे नहीं लगता किसी ने विमान शास्त्र नाम की किताब को पढ़ा भी है, सिर्फ फोटो देख के और चीजें देख के छोड़ दिया। लेकिन एक बार उसे पढ़ के देखिए, किसी ने, ऐसा नहीं है कि इतना भी खाली कोई नहीं बैठा था हमारे देश के अंदर की ऐसी स्ट्रक्चर्स बनाए, उसमें शेप दे दी और उसके मेजरमेंट्स दे दिए, और वो मेजरमेंट्स आज की तारीख में जब हम प्रूव कर रहे हैं तो दे आर कमिंग एब्सोल्युटली करेक्ट। वो दे आर फ्लाइएबल मशीन्स। ये एक्सपेरिमेंटली बाहर अभी एग्जांपल्स है मेरे पास, लेकिन समय नहीं है कि
जब उनको 3D प्रिंटर से हमने डिवाइस, ये जो शेप्स है इनको जब प्रिंट किया, इन शेप्स को जब हमने 3D प्रिंटर से प्रिंट किया है और इनको जो फ्लाइंग मशीन्स का जो क्या बोलते हैं उसको इंस्ट्रूमेंट है, जब उसमें टेस्ट किया तो दे आर एयरबॉर्न डिवाइसेस, तो दे आर हैविंग अ परफेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो हमारे विमान शास्त्र में इस तरह की अलग अलग डिवाइसेस के बारे में दे रखा है, उसी में एक डिवाइस है जिसको कहते हैं हम चुंबक मणि। ठीक है, चुंबक मणि इज अ सेंसर टू डिटेक्ट लैंड माइंस। अब इन दोनों ने, माहेश्वर जी एंड माधुरी जी ने CSIR प्रोजेक्ट के अंदर इस पे काम करना शुरू किया, कैन वी रीडेवलप दिस सेंसर, और उन्होंने वही सारी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स जो उस बुक में लिखी हुई है विमान शास्त्र में, उसको एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट किया यूजिंग ऑल द मॉडर्न टेक्निक्स। ठीक है, मॉडर्न टेक्निक्स लाइक XRD, थर्मल टेक्निक्स, TG, DTA, स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं सारे केमिस्ट्री वाले इन सारी टेक्निक्स को, और इस मणि को बनाए, सेंसर को बनाया। अब आप जब मणि की बात करते हो तो हम सीधा वो सांप की मणि और उस पर पहुंच जाते हैं 2 मिनट के अंदर, चुंबक मणि है, चुंबक, अच्छा ये तो वो चुंबक को चिपकाने वाली चीज है, बट ये नाम हुआ करते थे, सिर्फ नाम को आपने अब सेंसर वर्ड दे दिया है। एंड दिस इज अ वर्किंग मॉडल। चुंबक मणि इज अ वेरी सक्सेसफुल डिवाइस जिसको उन्होंने बनाया और एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करके दिखाया। और इसका अगर आप प्रोसेस देखोगे बनाने का, देखिए इक्वल अमाउंट्स ऑफ व्हाट यू कॉल बोरेक्स, आइवरी, पीपली, मरकरी, ठीक है, रंजिक, इस तरह के अलग अलग जितने भी इंग्रेडिएंट्स उस जमाने में पेड़ों में मिला करते थे, वहां से उन्होंने मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई किया, प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया, उनके प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया, कितने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे उन्होंने, तब जाके ये सेंसर तक वो पहुंचे होंगे। एक आदमी ने नहीं, आज भी आप कर रहे हैं ना, कितने सारे हम लोग वर्क कर रहे हैं, अलग अलग प्रोफेसर अलग अलग लैब्स में काम कर रहे हैं, तब जाके कोई एक चीज बनती है। ये इतने हजारों साल में धीरे धीरे बनती आई, और फिर एक दिन वो किताब के अंदर आई कि फाइनली दिस इज द डिवाइस। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स अगर हम केमिस्ट्री के अंदर हम आते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत मिलते हैं। अब क्योंकि आपने पीसी रे का नाम दिया है, आपने जितनी भी अभी तक ज्ञान मेरे से सुना है, जितनी भी बातें मेरे से सुनी है ना, वो इसी आदमी की देन थी, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। ये उन्हीं की देन थी, ये उन्हीं की किताब है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। वो पहली किताब थी जिसने जितने भी पहले आपके लिपियां रखी थी और अलग अलग जो आपके बुक्स अलग अलग लाइब्रेरीज में देश भर के अंदर अलग अलग मंदिरों में रखी थी, चाहे वो कश्मीर में थी या चेन्नई में थी या बनारस में थी, वहां पर अगर आप ये किताब पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, उन्होंने सारे रेफरेंसेस दे रखे हैं, कहाँ से उन्होंने ये किताबें ली, उसके बाद उन्हें पढ़ा और पढ़ के मॉडर्न इंग्लिश फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट किया। आज आप और मैं जो इस ज्ञान को पढ़ पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, वो इसी वजह से है, वो इन्हीं का कंट्रीब्यूशन था, वो इन्हीं का कंट्रीब्यूशन था जो आज हम लोगों को यहाँ तक लेके आया और पढ़ा पाया कि ये जो मेरा ज्ञान है, IKS सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं, वो इन्होंने उसकी नींव रखी जिसके ऊपर अब हम खड़े होने शुरू हुए हैं। और ये अपने आप में एक अलग ही हस्ती थे, मैंने इन पे काफी काम किया है, इसलिए मेरे तो फेवरेट ही कहोगे इन्हें। ठीक है, जैसे आप टाइटल में देख रहे हैं रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, उसकी भी वजह थी। अगर आप बंगाल CID का रिकॉर्ड देखेंगे तो बंगाल CID के रिकॉर्ड में इन भाई साहब को लिखा हुआ है कि ही इज अ रेवोल्यूशनरी इन द गार्ब ऑफ अ साइंटिस्ट, मतलब ये क्रांतिकारी है साइंटिस्ट के वेश में। और ये सच्चाई है। ये देखिए, ये किताब है, अगर आपको दिख रही है, ये मेरे हाथ में एक किताब है, इसके अंदर वो सारे एविडेंसेस हैं जहां पर पीसी रे के ऊपर जो मतलब इतनी मोटी किताब है, जो नोटिंग्स हैं पीसी रे के ऊपर, जो CID के रिकॉर्ड्स में आपको CID, क्योंकि जो भी ऑफिसर होता था वो वापस जाकर रिपोर्ट करता था कि आज ये हुआ है, तो उसमें जितनी इनकी हरकतें थी, कहाँ जाते थे, क्या करते थे, वो सारी मेंशन्ड है। कितना पैसा किस आदमी ने दिया, 5 पैसा कहाँ से आया, 1 रुपये कहाँ से आया, ये कहाँ से। तो एक ऐसे आदमी ने पहले किताब लिखी और फिर इनके अलग अलग जो आयाम रहे, ठीक है, उसको हम आगे मैं बड़े शॉर्ट में आपको दे रखा है, ठीक है,
ये बेसिकली यहाँ से क्या है ना, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ, ये जब पीसी रे का टॉक शुरू होता है तो वहां से शुरू होता है। जनरली ये बच्चों के लिए जो स्कूल और कॉलेजेस के होता है उनका है, तो आपको आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ अ लाइन वहां पे दिखेगी, ठीक है। साइंटिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, पूरे हमारे आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका साथ दिया। आचार्य प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के, सभी को पता है, और इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। 27 कंपनियों के मालिक थे, 27 कंपनियां। तो जैसा अभी इंट्रोडक्शन में बताया गया, बंगाल केमिकल्स एक कंपनी थी, बंगाल केमिकल्स एक कंपनी थी जो इन्होंने सबसे पहले शुरू की थी। विद उस कंपनी की भी एक बड़ी अच्छी खासियत थी कि उसके पास इन हाउस R&D। आज हम जब इन हाउस R&D की बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज के पास ये पहली इंडस्ट्री थी जिसमें इन हाउस R&D था, क्योंकि वो खुद केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, तो वहीं पे सारी चीजों का मतलब जो मैकेनिज्म था उसको डेवलप करना, अपने स्टूडेंट्स के साथ लगे रहना, अपने कारीगरों के साथ वहां लगे रहना, तभी ये बना पाए। फिर इनका फिलैंथ्रोपिस्ट हु लव्ड हिज पीपल, क्योंकि उस टाइम बंगाल में बाढ़ और सूखा बहुत पड़ा करता था, क्योंकि बंगाल को बर्बाद किया जा रहा था बकायदा। बंगाल में जितनी नदियां थी उस पर अलग अलग गलतियां ब्रिटिश ने बहुत करी है, जिसकी वजह से भुखमरी बहुत फैली। तो उनके लिए पैसा इकट्ठा करके लेके जाना और इसमें इनके स्टूडेंट्स, चाहे वो सत्येंद्र नाथ बोस थे, मेघनाथ शाह थे, असीमा चैटर्जी थे, उन लोगों का बहुत मेजर रोल रहा है। तो लाखों रुपए उस जमाने में इकट्ठे करके और गरीबों की मदद के लिए ले जाना, ये भी प्रफुल्ल चंद्र रे का बहुत बड़ा रोल था। और जैसे कि अब हम बात करते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया, ये मैं आप सभी से बताना चाहूंगा, प्लीज जब आप प्रफुल्ल चंद्र रे की बात करें तो कभी भी, या किसी के लिए भी बात करें, तो कभी भी ये मत बोलिए फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया। केमिस्ट्री इस देश में पहले से एग्जिस्ट करती थी। ये फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मॉडर्न एक्सप्लेनेशंस ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया कहला सकते हैं। लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री हमारे यहाँ पहले से थी। नागार्जुना से लेके हमारे सुश्रुत साहब मेहता, दे वर ऑल केमिस्ट्री। मेडिसिन इज ऑल्सो केमिस्ट्री। मेडिसिन के टैबलेट तक आते आते आपको बहुत सारे केमिस्ट्री के ही एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, तब वो टैबलेट बनती है, राइट। तो इसी तरह के इनको अलग अलग नाम भी मिले, मास्टर ऑफ नाइट्राइट्स, डॉक्टर ऑफ फ्लड्स, एंड ही वाज अ वेरी इंप्रेसिव पर्सनालिटी। ठीक है, मैं 5-7 मिनट में अब इसे बस क्लोज करूंगा, 40 मिनट होने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे गांधी, एक मैनचेस्टर गार्जियन बड़ा फेमस न्यूज़पेपर है, आज भी चल रहा है, ठीक है। उसने प्रफुल्ल चंद्र रे के बारे में क्या लिखा था कि अगर गांधी जी सिर्फ 2 और प्रफुल्ल चंद्र रे पैदा कर देते तो स्वराज 1 साल में मिल जाता। मतलब इतनी इन्फ्लुएंशियल इनकी पर्सनालिटी थी, इतनी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थी। और इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी का एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। ये तो चलिए, इसके अंदर 2 छोटे छोटे जल्दी से मैं आपको 2 किस्से बड़े अच्छे सुनाता हूँ इनके। ये इंग्लैंड गए पढ़ाई करने, और स्टूडेंट ही थे उस टाइम पे, पीएचडी करने गए थे। और पीएचडी करते हुए वहां पर जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं अलग अलग, तो इन्होंने एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया एडिनबरा यूनिवर्सिटी में, जिसका टाइटल था इंडिया बिफोर एंड आफ्टर द म्यूटिनी। 1857 की लड़ाई का टॉपिक ये था। तो ऑब्वियसली इनको प्राइज तो मिला नहीं। ही वॉज गिवन व्हाट यू कॉल, जिसे हम कहते हैं ना कंसेशन प्राइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद। तो फर्स्ट के बाद वहां से फर्स्ट प्राइज था, उसके बाद इनको जो प्राइज मिला, ठीक है, उसमें मतलब सेकंड प्राइज इनको मिला, ठीक है। चलिए, अब लेटर और इनका जो एस्से था वो इतना इम्प्रेसिव था कि डिस्पाइट बीइंग अ स्टूडेंट एट एडिनबरा यूनिवर्सिटी, इन्होंने उस एस्से को, जिसमें इन्होंने जो ब्रिटिश उस टाइम पे हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे, कैसे कैसे वो रिसोर्सेज को निकाल रहे थे, वो कैसे कैसे इकोनॉमी को सफर करा रहे थे, और कैसे जितने भी पैसे वाले लोग थे वो दिन रात गरीब होते जा रहे थे, ये हो रहा था। अगर हम प्रफुल्ल चंद्र रे की बात करें तो ये जमींदार फैमिली के बच्चे थे, लेकिन बाय द टाइम इन्होंने पीएचडी और ये करी, ये गरीब बन चुके थे। तो कुछ तो सिस्टम वहां चल रहा था ना, ये पैसा किसी तरह निकल रहा था। तो इन्होंने उस एस्से की फोटोकॉपी करवाई और सड़क में पब्लिक को बांटी, और उसी एस्से की जो रिपोर्ट थी न्यूज़पेपर्स में भी छपी, इनके बारे में भी छपा, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एक वहां पर इंग्लैंड में थे, उन्होंने भी उसमें आवाज उठाई कि ये एस्से यहाँ पर आया हुआ है, इसमें जितनी ऑब्वियसली वो डेमोक्रेटिक फॉर्म तो यूज कर ही रहे थे, ब्रिटिश अपने देश में तो कर ही रहे थे एटलीस्ट, कि भाई ये इतनी बड़ी आप देश के अंदर अत्याचार कर रहे हो, इंडिया के अंदर ये क्या हो रहा है। तो मतलब वो एस्से इतना इंप्रेसिव था कि उसने
जो उस टाइम के न्यूज़पेपर थे उसमें भी मेंशन पाया कि इस तरह का ऐसे एक बच्चे ने लिखा है जो दिया जा रहा है। जबकि आज की तारीख में अगर मैं मैक्सिमम बच्चे हम लोग देखें तो वो डरेंगे इस तरह की हरकत करने में, ठीक है, लेकिन ये उन्हीं के स्कॉलरशिप पे थे, फिर भी इन्होंने अपने देश की आवाज को उठाया। इसी तरह एक बड़ा अच्छा किस्सा है ये वाला, ठीक है। डेली प्रफुल्ल चंद्र रे अपना घूमने जाया करते थे, शाम को मैदान हुआ करते थे, मैदान में ये घूमा करते थे, जिसे हम इवनिंग वॉक की बात करते हैं। और इवनिंग वॉक में इनके जो पीएचडी स्टूडेंट्स थे वो भी हुआ करते थे साथ में। तो एक दिन ये अपना निकले और किसी ने कहा कि भाई वहाँ पर एक क्या बोलते हैं, बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज और इस तरह का एक प्रोग्राम हो रहा है, आप भी वहाँ आइए, और उसके अंदर कुछ फेमस लोग भी आ रहे हैं, जैसे CR दास जो थे उस टाइम के, और सत्यानंद बोस वगैरह जो थे, उन लोगों ने इनको बुलाया कि आप भी आइए। तो अब ये शर्माते हुए, हेजिटेट करते हुए, साइंटिस्ट आदमी केमिस्ट्री के थे, पीछे जाके खड़े हो गए। भीड़ के अंदर बहुत सारी भीड़ भरी पड़ी थी, और इस मतलब पीछे करते करते, लेकिन ऐसा हुआ कि बीच में जो स्टेज पे CR दास बोल रहे थे, उन्होंने भीड़ में से पहचान लिया कि प्रफुल्ल चंद्र रे भी आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा, रे साहब आप वहां क्यों खड़े हैं, प्लीज आप आगे आइए स्टेज पे। तो जो प्रफुल्ल चंद्र है उन्होंने अपनी जीवनी के अंदर लिखा कि भाई जब मैं स्टेज पे चढ़ा, और ये कहानी जो है, ये किस्सा जो है अमृत बाजार पत्रिका फरवरी 1919 में रिपोर्ट हुआ है ये किस्सा, कि जब प्रफुल्ल चंद्र रे स्टेज पे चढ़े तो पब्लिक इतनी एक्साइटेड हुई थी और उन्होंने वंदे मातरम बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो और जब उन्होंने बोला कि भाई मैं एक लैब का आदमी हूं, लेकिन अब समय आ गया है, मतलब इतना बोलने से पहले ही क्राउड फिर से एक्साइटेड होके वंदे मातरम और इस तरह की आवाजें निकालने लगी, और अब समय आ गया है कि मैं अपनी लैब को छोड़ूं और बाहर पब्लिक में आऊं। तो क्राउड का जो, अगर आप एंटिसिपेशन देखोगे क्राउड का, अगर आप समझदारी देखो, कितना उन लोगों में इस आदमी के लिए रेस्पेक्ट था कि एक आदमी अपनी लैब छोड़ के जब पब्लिक के अंदर आ रहा है और आजादी के लिए बोल रहा है, और पब्लिक कितनी एक्साइटेड है, ठीक है। उससे हम समझ सकते हैं कि इनकी क्या एक इमेज रही होगी, आम आदमी के अंदर भी इनके बारे में कितना अच्छा एक इमेज था कि आज एक केमिस्ट्री का प्रोफेसर जब स्टेज पे चढ़ता है और बोलता है कि मुझे आजादी चाहिए और आजादी के अगेंस्ट हम नहीं मतलब लड़ेंगे, तो उस चीजों को लेके आप समझ सकते हैं कि पब्लिक का परसेप्शन और पीसी रे की इमेज कितनी अच्छी रही। और अमृत बाजार पत्रिका ने इसके बारे में लिखा भी, और उससे उसी साल 1919 में इनको जो क्वीन का जो नाइट शिप जिसे हम कहते हैं, जो सर का वर्ड है, सर भी उनको सर का खिताब भी इनको मिला। और इन्हीं पीसी रे के बारे में आप अलग अलग जगहों पे, जैसे गांधी जी ने भी अपनी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के अंदर इनके बारे में लिखा है, ठीक है, कि ये आदमी वो है जिसको 800 रुपए मिलते हैं सैलरी में से, बस 40 रुपए अपने लिए रखता है और बाकी सारा बांट देता है। 760 रुपीज वो अपने सारे स्टूडेंट्स, उन्होंने जितने भी अपने गरीब बच्चे थे उन्होंने अपने घर में रखे हुए थे। वो एक कमरे में रहते थे और बाकी कमरों में उन्होंने जितने भी गरीब बच्चे थे उनको रखा हुआ था, जो बच्चे पढ़ने आया करते थे। और उसी का नतीजा है कि असीमा चैटर्जी जैसे, मेघनाथ साहा जैसे, सत्येंद्र नाथ बोस जैसे आपको आज साइंटिस्ट मिले। असीमा चैटर्जी वही है जो आज आप टैबलेट खा रहे हैं, ये होती है ना ये वाली टैबलेट, हम भृंगराज की टैबलेट और ये ब्रह्मी की टैबलेट, तुलसी की टैबलेट, इन सबको टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो एक्सपेरिमेंट था और जो टेक्निक थी वो असीमा चैटर्जी ने ही इस देश को दी है। सदाबहार के पौधे के अंदर, जो सदाबहार है ना पर्पल कलर का फूल, सदाबहार का जो पौधा है उसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, वो भी सबसे पहले असीमा चैटर्जी ने ही आइडेंटिफाई करके दी थी। तो इन साइंटिस्टों की देन, इनके स्टूडेंट वैसे ही निकले। बाकी इन्होंने अलग अलग जगहों पे, प्रफुल्ल चंद्र रे ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया, और आज की तारीख में इसीलिए इनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। ये इनकी इंडस्ट्री है जो आज भी चल रही है, ठीक है, जिसको हम बंगाल केमिकल्स बोलते हैं। और उसी के साथ साथ जैसा मैंने बताया कि इनकी तो और इतनी सारी इंडस्ट्रीज थी, एक नहीं थी, इनकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, बहुत सारी, ठीक है। मैंने कुछ, मेरे ख्याल से अगर इसमें होंगी इमेजेस, ये देखिए कितनी सारी थी। पीसी रे कॉटन मिल्स, बंगाल सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग, बंगाल पॉटरीज, बंगाल स्टीम नेविगेशन, बंगाल एनिमल वर्क्स, बंगाल पेपर, इनका काम सिर्फ, और इसमें से कोई भी पैसा नहीं लेते थे। कमाल की बात ये पैसा नहीं लेते थे, ये सारा पैसा इनका लेबर के बीच में बढ़ जाता था या स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप में चला जाता था। पैसे ही अपने वही लेते थे एक कमरे में रहने के लिए 40 रुपए।
जो इनका खाना पीना का खर्चा था, पब्लिशिंग हाउस, ठीक है, हर चीज। और इनका एम था कि भाई एक इस पैसे से जितनी भी कमाई हो वो बच्चों तक पहुंचे, और जो लेबर इनके यहाँ काम कर रहे हैं, जो आदमी काम कर रहे हैं, उन तक जाए। और दूसरा, नौकरी जनरेट करना, जिसकी आज आपको कहते हैं ना स्टार्टअप, सारे बच्चे जो है स्टार्टअप खोलो अपने, वो स्टार्टअप था कि भाई उन्होंने गरीबी देखी कैसे। खाली मतलब आप जब इनकी जीवनी पढ़ेंगे तो देखेंगे जीवनी के अंदर उन्होंने लिखा है कैसे आदमी जो है, यंगस्टर्स जो है अपना टाइम पास कर रहे हैं, पेड़ों के नीचे ताश खेल रहे बैठे हुए, ठीक है, या हुक्का पी रहे बैठे हुए, तो वो बड़े परेशान थे। इसलिए उन्होंने इस तरह की इंडस्ट्री शुरू करी कि नौकरियां मिलेंगी, लोगों को सीखेंगे। और आज आप उसी का नतीजा देखिए, ये इतनी सारी चीजें उन्हीं की इंडस्ट्री की है, ठीक है। तो अब मैं इसी पे मेरे ख्याल से मैं रोकना चाहूंगा। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री तो मैंने आपको बताई है कि ये पहली किताब थी, बहुत ही अच्छी किताब है, किसी को अगर मौका मिले तो इसे पढ़िएगा। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि मैं यहीं पर रोक दूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है अदरवाइज तो आगे किसी के सवाल जवाब या जो है, या विनायक विशाल जी, आई होप 40 मिनट मैं ऊपर, हाँ थोड़ा सा निकल गया हूँ जी। Okay, thank you, sir. Thank you, Raju ji. You delivered very well, or more knownful chemistry, history of the Indian chemistry, and how to convert of the history of chemistry in modern chemistry by great scientist Prafulla Chandra Ray. So thank you, sir. So now I request to my colleagues, Professor Rajpal Jadhav, sir, for vote of thanks. Namaskar to everyone. It's my pleasure to give you राजपाल शायद आप म्यूट हो गए। राजपाल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद म्यूट है। हाँ एक मिनट, हाँ सॉरी। हाँ please. Namaskar to everyone. It's my pleasure to give vote of thanks on the behalf of Chemistry Department, Swatantraveer Savarkar Mahavidyalaya, Bij. The chairperson of the national webinar is Honorable Principal of the college, Dr. Preeti Poekar Ma'am. Given a presidential speech and enlighten us. Thank you for the valuable guidance, ma'am. Now I give a vote of thanks to today's resource person, Dr. Professor Rajiv Singh, Professor in Chemistry, Department of Atmaram Sanatan Dharma College, University of Delhi. Thank you for a wonderful lecture and guidance to Indian chemistry thoughts and enlighten us. Thank you, sir. Now I give vote of thanks to Professor Sripath Kulkarni, sir, Vigyan Bharati, Devgiri Prant, for collaboration to organize such a wonderful webinar. Thank you, sir. I express my vote of thanks to Dr. Hansraj Joshi, head of the department, and convener of this webinar. And I also give a vote of thanks to Vishal Naiknavre, sir, the coordinator of this webinar. I also give vote of thanks to both the vice principal of this college and all the colleagues and all the participants and all friends. They joined today's national webinar. Thank you, one and all. Thanks. धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। बहुत अच्छी तरह से रखा सर टॉपिक आपने। कोशिश करिए थोड़ा सा, क्या है कि 40 मिनट 50 मिनट में सर वही बोलना था, आपने बहुत अच्छा किया, टाइम कम है, आप अपनी पीपीटी शेयर कर सकते क्या जो कुछ बात की है? So topic was very interesting, so we want to continue here. So can you share your presentation?
Yeah, I'll send it. हाँ पाटिल सर, डॉक्टर अरविंद पाटिल सर आएगा. थँक्यू राजीव सर, थँक्यू सर. हिस्टॉरिकल ह्या गोष्टी आपल्याकडे असून आपण किती अनुभवी आहेत याची जाणीव